یہ احساس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی قولی تھی، جو ان کی فعلی تھی، کہ وہ کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہیں، تو وہ ساری کی ساری انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں جو حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 660، اور وہ حدیث جو ہے اب آپ لوگوں نے خود بھی اس کو سرچ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اور اتنی پیاری حدیث تھی کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کتنی دفعہ، تو ہم نے یہ جانا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں 50,000 سال کا دن ہے، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور گرمی اتنی ہوگی کہ پسینے میں انسان ایسے شرابور ہوگا کہ کانوں کی لو تک آپ سوچے پورا پسینے میں بھیگا ہوگا۔ اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سائے تلے، بعض جگہوں پہ آتا ہے اپنے عرش کے سائے تلے، اور بعض میں آپ اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے نا بخاری والی حدیث کا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ نمبر 1، وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، عادل حکمران۔ کاش ہمارے ملک کے حکمرانوں تک یہ حدیث پہنچ جائے کہ صرف ان کو عدل کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ یہ مجھے جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا، ون آف مائی فرینڈ، ایک دفعہ اسے بات ہو رہی تھی تو وہ شی واز لل اپسیٹ نا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ سارا وقت تو مسجد سے آتے نہیں ہے کیونکہ جاب بھی کر رہے تھے، گھر بھی ہوتا ہے بندے کا، تو کہتی ہیں ان کو موقع ملتا ہے بھاگتے ہیں مسجد میں۔ ان امریکہ دیکھیے، حالانکہ یہاں پہ مسجدیں بہت قریب نہیں ہیں، جیسے پاکستان میں تو ہر محلے میں ہوتی ہے نا مسجد، تو اسی طرح سے انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی قریب ہوتی ہوں گی، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کا، ون آف مائی فرینڈ، اس سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی، تو شی واز ویری مچ انوالو ان مسجد، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، اس طرح سے بات ہو رہی تھی، تو شی سیڈ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بزنس کرتے تھے، کیونکہ تو وہ واپس آتے، وہ سارا وقت مسجد میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے اس لیے اپسیٹ ہوں کہ آپ گھر نہیں آ رہے، آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ادھر ہی مصروف کر دیا، تاکہ وہ لیڈیز کے سیکشن میں وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے وہ پورا ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا شخص، عورت ہے یا مرد ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ مجھے اپنی ساری ٹیچرز آنیسٹلی یاد آ گئیں، الحمدللہ زیادہ تر، بہت تھوڑی ہیں ایسے ٹیچرز جو بڑی عمر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے، لیکن زیادہ تر بچیاں وہ ہیں جو چھوٹی عمر ہے، ابھی کالج جا رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ۔ تو اب یہ جو لسٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں ان میں سے الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز میں یا 2 چیزوں میں یا 3 میں تو آ ہی جائے گے، ایک میں تو انشاءاللہ ضرور آ جائے گے۔ اچھا، نمبر 4، ایسا شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور اللہ کی خاطر ہی وہ اپنی محبت کو سے دور ہوتا ہے، مطلب وہ دشمنی کرتا ہے یا اس سے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ تو اکثر نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو یو فار دا سیک آف اللہ، تو ہم میں سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیچر سے ویسی محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس طرح سے ہوتا یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ان سے اس لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آ ہی جائیں گے نا کسی نہ کسی طرح سے۔ اب نمبر 5، ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا، تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اچھا جی، وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ او تو کیا ہم بتائیں، مطلب نہ، ہاں اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں
जब आपको ये एहसास होता है कि अगर मेरे बताने से दूसरे इनकरेज होंगे और वो भी अल्लाह की राह में देंगे, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, उसका भी इतना ही सवाब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए करते हैं कि मैं देखो मैं तो इतना सदका करती हूँ, हर एक को बताते रहोगे और देने वाले को भी जताते रहोगे, तो ऑफ कोर्स फिर तो नहीं ना बात बनती है। तो ऐसा शख्स जो सदका देता है उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता, ठीक है। और फिर ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद किया और उसके आंसू निकल आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से, खशियत इलाही कहते हैं ना। तो इसमें भी मुझे लगता है हम सारे आ ही जाएंगे, क्योंकि होता है। अच्छा, अब ये कई दफ़ा हमारे रोने पता है क्या होते हैं, जब हमारी अपनी कोई मुसीबत होती है या पाक परवरदिगार कोई गम आता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर रोना तो आंखों के ऊपर ही लटका होता है ना हम लोगों का, तो फिर तो बहुत रोना आता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में, या फिर इसलिए कि या पाक परवरदिगार मुझे पहले तो पता ही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कुरान खुला तो मुझे पता चला कि या अल्लाह हमने कितनी गलतियाँ की है, तो अल्लाह खशियत इलाही से आंसू जो गिरता है ना, देखिए एक हदीस हमने पढ़ी थी ना कि आंसू वो आंख से गिरता है लेकिन वो ज़मीन पे भी नहीं गिरता, कि फरिश्ते अपने हाथ आगे कर लेते हैं और उसको थाम लेते हैं। और जहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत या खशियत इलाही से जो आंसू जहाँ भी लगा होता है ना, उस जगह को आग नहीं दोज़ख की छू सकेगी। अल्लाह अकबर। सहाबा करते थे ये, बल्कि मैं भी करती हूँ, कभी ऐसा होता है तो पूरे मुंह पे मल लेते हैं कि या अल्लाह, मतलब वो बड़ा प्यारा लम्हा होता है, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह से मोहब्बत का होता है आलम, एक तरफ स्पेशली ये होता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि या अल्लाह मुझसे क्या क्या हुआ था पहले, या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो मोहब्बत में जब आंसू गिरते हैं ना, तो वो फिर होता है कि सारी जगह पे, हाथों पे भी लगा लो, सारी जगह पे लगा लो। तो ये बड़ी प्यारी सी हदीस थी। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस रास्ते पे चले होते हैं ना, वो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ कर ही रहे होते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। तो आइए हम अपने रेगुलर सबक की तरफ आते हैं। हम कर रहे थे सूरत यूसुफ, और सूरह यूसुफ की आज करेंगे आयत नंबर 17। सूरह यूसुफ इतनी प्यारी सूरह है ऑनेस्टली, कि एक एक आया में इतने सबक हैं कि अगर हमें उनकी डेप्थ समझ आ जाए ना, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरह ख़त्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज़, जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे, 10 भाई थे, उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है अपने, कि माँ बाप जो होते हैं ना, गलती से कई दफ़ा ऐसा कर जाते हैं। हज़रत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसे भी हसद आ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है, तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज़ नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूँगी ना कि नहीं हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनेट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीज़ें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना, उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है, और
वही शैतान का वसवसा जो है ना, वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या बताया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हाना ताला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे से करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना, तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट। शैतान जो है ना, वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, और वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें दिया, वो एक बंद, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का नूर है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता है मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है अगर खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है, वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाजा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहां पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस खत्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाजा आप सोचे हसद है। अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते, तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना, उसको उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्जाम्पल, उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से ये तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, उनका सारा कुछ कर रही हूँ। और दिस इज वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है, कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं, समटाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है, अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में, तो एकदम से पता चलता है कि शी इज डूइंग वेरी गुड। तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं, उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए, अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो जो नेमतें दिए गए हैं ना, उनसे हसद होगा।
کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو. تو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے, جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے, وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے, اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے, ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں, تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا, دروازہ اب کھل گیا. شیطان نے اس کو نوک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی, کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرف کی نالج نہیں ہوتی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر, کہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے عمل کرنے والا بنا دے, کہ میں کہوں نہیں ایسی بات نہیں مجھے سوچنی چاہیے, سوچ پہ پیرے وائی لگا دے. اب کیونکہ اللہ کا نور تھا دل میں, وہاں پہ جب شیطان گھسا نا تو نور چلا جاتا ہے. ایک جگہ پہ دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں. پھر دیکھیں شیطان جو ہے نا یہ اندھیرے ہیں, وہ جب آتا ہے دل کے اندر تو وہ ساری چیزوں کو جیسے کلیئر نہیں ہوتی نا, بندہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایسی چیزیں, کیونکہ اب وہ دل میں وہ تو حکمرانی کرنا شروع ہو گیا کہ اب ایک حسد کے پیچھے اس نے اتنی چیزیں, اور پھر انسان کا وہ جو کھڑکیاں دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں نا, شیطان کیسے آتا ہے. اب دیکھیں دروازوں میں بہت سے ہیں, میں آپ کو کچھ دروازوں کا بتا دیتی ہوں. جیسے غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ایسے ہاتھ میں آتا ہے جیسے وہ فٹ بال نہیں ہوتا کہ وہ کک کرے اور جہاں بھی اس کو لے جانا چاہے وہ لے جائے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ کیا بول دیتا ہے, بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا. یہاں تک کہ دیکھیں طلاق کا زیادہ تر آپ دیکھیں غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اس وقت شیطان وہ سارے کام کراتا ہے, لڑائیاں جھگڑے کرانا, یہ سارا کچھ. اس کے بعد چغلیاں لگانا جیسے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو چغلی ہو گئی نا, چلو منہ سے نکلی, سن کے ہی آگے تھے تب بھی غلط کیا نا. پھر دیکھیں جب عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں, وہ بچیاں جو جوان ہیں اسپیشلی, جب وہ کہتی ہیں نہیں وہ جسٹ اے فرینڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ جب دو انسان, دو مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو اس کے بیچ میں شیطان ہوگا. وہ شیطان جو ہے نا وہ وسیلے کا بیسیکلی ان دونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک کے دماغ میں القاء کرتا ہے, وہ جھوٹی اس کی بات اس کے کان میں ڈالے گا, اس کے ڈالے گا, یہاں تک کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہرس کرنا, لالچ دلوانا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جب یہ اگر آتی ہے نا تو کہاں پہ آئے گی, ہمارے دل کے اندر آتی ہیں. اور دل جو ہوتا ہے وہ پھر سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائے نماز تو پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, پھر سیڈنس کیوں ہے, پھر تکلیف کیوں ہے. سیڈنس جو ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ کا لفظ ہے خبردار ہو جو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنی بڑی بات ہے. اب صرف اسی ایک بات پہ رک جاؤ تو خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی, تو پھر کاہے کا خوف ہے, کاہے کا حزن ہے, کاہے کی تکلیف ہے, پھر سیڈنس کیوں ہے. تو یہ آج یہ بتانا ضروری تھا. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ نکالو اپنے دل سے, مت اس کو پٹیاں لگا لگا کے اندر رکھو کہ نہیں میں تو نہیں یہ کرتی ہوں, میں تو نہیں یہ کرتی ہوں. کرتے ہیں ہم لوگ. میں اب جب یہ لیکچر آنیسٹلی پڑھی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں جب منافقین کا پڑھا تھا تو قسم سے لگتا تھا کہ ہائے یہ بھی تو ہم کرتے ہیں, ہائے یہ بھی تو کر رہے ہیں, یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ یہ احساس ہوا کہ ان کو نکالنا اندر سے, نکالنا اندر سے. یہی تو جہاد ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں دل ہے, تو دل وہ پھراتے رہتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہے, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو کاؤنٹر کرتے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہو.
एक जगह पे दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। जब हम तस्बीहात करते हैं शैतान नहीं आ सकता। जब हम इन चीजों से दूर होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये तो शैतानी काम है, ये नहीं करना, ये तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा, वो घुस जाएगा अंदर। तो लिटरली आप जैसे एक मूवी देख रहे हैं, एक ड्रामा देख रहे हैं ना, उस तरह से विजुलाइज किया करें कि शैतान कैसे कैसे हमले करता है अच्छे भले कामयाब तरीन इंसानों को, इतने हुजन में डाल देता है, इतने खौफ में डाल देता है कि वो डिप्रेशन में जाके बस पड़ जाया हो जाते हैं। और आजकल तो देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरा ख्याल है बताया था कि छोटे बच्चे जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में ओपन उन्होंने कर दिया, फ्री कंसल्टेशन कर दिया है कि बच्चे इतने ज्यादा उनके अंदर खौफ, इतना अंदर डर हो गया है कि वो डिप्रेशन में चल जाना शुरू हो गए, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमने ना खुद कुरान खुला था, ना हमें बच्चों को बताना। ये सारी चीज हमें, अगर हम अपने बच्चों को समझा सकें कि बेटा ये चीजें होती हैं जिससे हमारे जिंदगियों में अंधेरे आ जाते हैं, हमें इनको नहीं अपने अंदर पैदा करना, हमें लोगों से जिनकी कामयाबियां देख के हमने खुश होना है। और दूसरी तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि जो लोगों के सामने फेंक फेंक के जाहिर करते हैं कि देखो मेरे तो घर में इतनी खुशी, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, तो यहाँ से फूल लेके आए तो वहां से फूल रख दिया। हमने वो सारा कुछ देख देख के जो बेसिकली ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं मूवीज में, ड्रामों में काम करने वाले, उनकी लाइफस्टाइल देख देख के फिर हर कोई बच्ची वही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि हाय कितने मजे, वो जन्नत तो यही लग रही होती है कि ये सारा कुछ है। फिर वो वही मिमिक करना शुरू हो जाते हैं, वही लाइफस्टाइल कि अच्छा उनको ये नहीं पता चलता ये सब धोखा है। वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि वाह व्हाट अ लाइफ, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अंदर उनकी क्या हालत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों को महफूज रखे और उससे पहले हमें महफूज रखे। माँ बाप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे चेंज होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इंशाल्लाह जहाँ जाएगा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल से इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये भाइयों में जो हसद आ गया था, इसमें एक और बात भी आप देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो वो तो पढ़ाती है, इसको तो इतना पता है, तो लुक एट उसकी बेटी को देखो, वो इस तरह की, वो तो फॉलोइंग मतलब उस तरह से उसकी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, उसके फलां को देखो, तो ऐसे करते हैं ना लोग। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये नबी की औलादें हैं, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे, उन बच्चों का ये हाल है। तो मतलब क्या तरबियत नहीं हुई थी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि कोशिश करते रहना है। यहाँ पे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का भी आप किरदार देखेंगे कि जब बच्चे ऐसे करते, क्योंकि एंड में फिर ये ठीक हो गए थे। यही वो बच्चे थे, ये जब वो मिस्र में गए थे तो जो बनी इसराइल की नस्ल बनी थी ना, जो यहूदी फिर बाद में बने थे, तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं जो भाई थे ना, इन्हीं की नस्लों से फिर आगे वो नस्ल चली थी, इन्हीं के बच्चों के बच्चे थे वो सारे के सारे। तो आपका ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये अपने भाई को फेंकाते हैं, क्योंकि सब ने इकट्ठा फैसला किया, अपने भाई को फेंक आए थे जाके उसमें अल्लाह अकबर, कुएं में फेंक आए थे, है ना। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, अब वो वापस आए घर में, आके कहते हैं कौलू, उन सब ने कहा या अबाना, ए अबाजान, इन्ना ज़हबना, के बेशक हम चले गए थे, नस्तबिक, कि हम दौड़ का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे, वह तरकना, अब ये बहाना बना रहे हैं। आप देखिए इतना घुनौना काम करके आए हैं और आके क्या कर रहे हैं कि वह तरकना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को, आइंदा मताइना, कि अपने सामान के पास, फ़ाअकलहु ज़िब, तो उसको खा गया भेड़िया, वमा अंता बिमुमिनिन लना, कि आप तो हम पे यकीन ही नहीं करने वाले ना, वलो कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें जरा, कि आके अपने बाप को ये कह रहे हैं। और बाप को भी देखिए, यहाँ पे एक और गौर करने की बात है कि बाप नबी हैं, लेकिन उनके पास गायब का इल्म नहीं है। अगर उनके पास गायब का इल्म होता, उनको ये पता होता कि ये क्या एक्चुअली करने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक डर था ना जो वो बयान कर रहे थे, तो वो कभी अपने बच्चे को ना जाने देते। लेकिन उनको एक जैसे आम भी आप देखें कि पता चल जाता है ना ऐसी चीजों में कि ये
उसको ले जाएंगे कहीं, उसके साथ ये ना कर दे, उनको ये डर था। अब आगे देखिए वो कहते हैं वजाऊ, और वो लाए अला कमीज ही, उसकी कमीज पर बिदामिन कजिब, झूठा खून लगाकर। अब इस मुकाम पे यूसुफ जो है यकूब अलैहिस्सलाम, उनको समझ आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज, एक तो ये कि कहते हैं कि उन्होंने बकरी को ज़बह किया और उसका खून जो है वो उस कमीज पे लगा दिया। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उतारी, देखें मैं वो विजुलाइज करती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे थे, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं थे, 12 साल के बच्चे को पता लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर 10-12 साल का बच्चा एक है, उसकी कमीज उतरवाई पहले और उसको किस तरह से रस्सियों से बांध के उन्होंने फेंका था, तो उसको यकूब अलैहिस्सलाम को ये तो पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़िया ऐसा कौन सा भेड़िया था जिसने पहले कहा कि अच्छा कमीज उतारो, और कमीज फटी भी नहीं है और उस पर खून लगा के ले आए हैं। और अब देखो ऐसे मामले में बाप का क्या हाल होता है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, काला कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम को अंडरलाइन करें, अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने ये काम को, कि जो तुमने करना था ना, उनको वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे को, कि जो काम तुमने करना था तुमने कर लिया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें वो काम करने के लिए अच्छा करके दिखाया। अब देखें यहाँ पे हम ये गौर करें कि अक्सर हम तो ये पढ़ते हैं ना कि इंसान ने ये गलत काम किया, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी हसद का, कि शैतान ने करवाया था। मैं कहती हूँ इस एक बात पे अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह जी क्या करूँ मैं, वो वाला हाल हो जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितना मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, अपनी तख्लीक से बेसिकली, है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं बंदे इतना गंदा काम करके भी तो आया ना, तूने नहीं किया ना, ये तेरे शैतान ने करा दिया, चल तू माफी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम हुज़न में ना जाना, गम ना करना कि अब तो माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ, कुल्लू, हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह वाली बात है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ माफ कर देंगे, तूने थोड़ी किया, तू शैतान कमबख्त तेरे पीछे लगा हुआ था, उसने करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अनफुसकुम, तुमने खुद ये किया है। अब यहाँ इस बात को समझने के लिए आप रमजान के महीने में देखिए कि रमजान में क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो सारे शैतानों को बंद कर दिया जाता है। तो फिर शैतान अगर बंद हो जाता है तो रमजान में क्या बुराइयां नहीं होती हैं, क्या गलत काम नहीं होते? पहले तो पता नहीं चलता था ना, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हमें पता चल जाता है। अल्लाह अकबर, रमजान के महीने में बाप और बेटी के साथ जो भी उसने जुल्म किया था इसी रमजान में आया था, हमने पढ़ा था, और हैरत के मारे कि अल्लाह अकबर, रमजान में, रमजान के महीने में तो शैतान बंद हो जाते हैं। तो वो नफ्स था जो इंसान को मजबूर करता है। हम कई दफा देखें बहाने ये कर लेते हैं, लेकिन हमें ही आदत पड़ी होती है, हम ही गलत काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि बुराई क्या है, हमें पता होता है हराम क्या है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज अल्लाह को नाराज करने वाली है, फिर भी लज्जत होती है बुराई की। बुराई की एक अपनी चीज होती है। आप सोचें जरा कि ऐसी क्या चीज है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या नहीं कहा कि अपनी, चलो मैं तो पर्दे का आखिर में लेके जाती हूँ ना, कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घरों से निकलो तो एक बड़ी चादर अपने ऊपर डाल लो, है ना। लेकिन सूरत नूर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर डाल लो। इतनी क्लियर लिखा हुआ। वहां पे तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा जी युद्धनीना कैसे था कैसे नहीं, इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो फिर भी आप देखें पाकिस्तान में मुसलमान हैं सारे, वहां पे आप देखिए कुर्ता मिलेगा, दुपट्टा कोई नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ता है कि कोई ऐसे वाले कपड़े हैं जिनके साथ दुपट्टे नहीं जी, वो तो आपको मैच करना पड़ेगा। आप देखें उसकी अलग से प्राइस लगी होती है। और ना सिर्फ वहां मैच करना, फिर देखते देखते आप देखें कि पार्टीज में आप देख ले, यूजुअली लोगों ने दुपट्टे नहीं लिए होते, वो क्योंकि कुर्ता पहना हुआ है। और जिन्होंने लिए भी होते हैं तो वो बाजू के एक, अल्लाह माफ करे, पहले मैं भी करती थी ऐसे जब नहीं पता था, तो दुपट्टा लिया, एक साइड से इधर किया, दूसरे साइड से हाथ पे लगा के वो जिस तरह फैशन के तौर पे लटकाया होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना ताला। इसीलिए मैं जब बोलती हूँ ना, कसम से दिल में से निकलता है कि कैसे दूसरों के अंदर डाल दे कि बस जिंदगी में ही अल्लाह से तौबा करने वाले बन जाए। नहीं पता था ना तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा।
لیکن پتہ لگ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم شیطان کے اس پھر شیطان اس لیے بولتی ہوں نا کیونکہ ہمیں عادت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں جو بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں آخر یہ کیوں اتنا مشکل ہے، کیوں ہم لوگ جیسے میں مہندیوں کا کہتی ہوں کسی نے چھوڑی ہیں، واللہ گنتی پہ آپ لے لیں گے نا اپنے اراؤنڈ جاننے والوں میں تو ہاں اس نے جب اس کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آئی. کئی تو ہم بہانے بھی تو کرتے ہیں نا، خامد کا بہانہ تو بچوں کا بہانہ تو یہ وہ، اور کئی دفعہ اوریجنل بھی ہوتا ہے، ڈرتے بھی تو ہے نا ہم انسانوں سے. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں بالکل وہی سٹوری کرا رہا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سورۃ البقرہ میں گائے کے ساتھ کیا تھا. اتنا مشکل کر دیتے ہیں، اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ کرنے کو مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پھر میں کہتی ہوں اچھے تھے انہوں نے آخر میں کر دیا تھا، ہم تو آخر میں آتے ہی نہیں ہے نا. کسی گھر میں آپ دیکھ لیں، مجھے آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے آنیسٹلی کیونکہ اتنا ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، لو ونز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ لوگ جو ہے درس کے لیے، تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ اس دن درس کے بعد آپ لوگ وہ جو مائیوں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا میں تو یہاں تک تھی پوچھ رہی تھی، دیکھیں انسان لرن کرتا ہے نا زندگی میں، ایوری ڈے آپ نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں اور یہی تو زندگی ہے. تو ون آف مائی فرینڈ شی سیڈ کہ عائشہ میں پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہندی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مکس کرنا ہے وہاں پہ ڈانسز ہیں، میوزک آن ہے، لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں تو میں درس پہ نہیں جاتی. اچھا پہلے میرے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں جانا تو ضرور چاہیے، اللہ کا پیغام ہے، اسی بہانے دیتے ہیں. بعد میں پتہ ہے ذہن میں کیا آیا جب ہم آپس میں ڈسکس کیا، وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ہیوسٹن میں درس دیتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ شیطان ان لوگوں کو تسلیاں دے دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لیے، اب تم جو دل چاہتا ہے کرو. تو وہ غلط بات ہے، دس از اے رانگ میسج. اگر ہم منع کر دیں گے ان کو کہ نہیں ایم سوری اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں نہیں آ رہی ہوں، تو اٹس اے ویری بگ میسج ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں، کیونکہ مسلمان ہی تو ہے نا، ہم غیر مسلمانوں کو تو نہیں یہ بات کہہ رہے نا. تو وہ میسج بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی نہیں جائے گا، سب منع کر دیں کہ ہم سوری اگر ایسے ہے تو میں نہیں درس دینے آ رہی ہوں، تو ان کو کتنا بڑا میسج ملتا ہے. تو دین آئی انڈرسٹینڈ، ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، پہلے میں ایسے نہیں سوچا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی ہے، پھر ایک مقام آتا ہے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، ابھی پھر ہم واپس اسی لیول پہ اچھا پھر سے کوشش کر رہے ہیں، پھر سے لگ جاتے ہیں. تو جیسے کل پارٹی میں ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ جب کلاس دیتی ہیں تو آپ کتنی دیر پڑھتی ہے. ایسے کتنی دیر پڑھتی ہے، صرف پڑھتی ہوں. اگر 7ویں دن کی کلاس ہے نا، اگر فار ایگزامپل ہماری ہیوسٹن کے 11 بجے ہیں تو 10:59 تک میں صرف پورے 7 دن یہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور مجھے شوق بھی ہے، میں پڑھتی ہوں، دل سے پڑھتی ہوں، مطلب مجھے شوق ہے تدبر کرنے کا. میں سوچتی ہوں ایک ایک آیا کو لے کے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو پھر بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو یہی باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم داعیے دین ہے جو سیکھ رہے ہیں، ایک دن آپ لوگوں نے بھی داعیے دین بننا ہے. تو یہ مرحلے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئیں گے اور ہم کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری اپنے نفس نے، تمہاری اپنی جانوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، تم یہ کام کر رہے ہو، تو ہمارے نفس کیسے ہمیں برباد کرتے ہیں ہم یہ دیکھا تھا. اب آگے سے کیا کہتے ہیں، فَصَبْرٌ جمیل، تو بس صبر ہی اچھا ہے. صبر جمیل پتہ ہے کس صبر کو کہتے ہیں؟ جس میں واو ویلا نہ ہو. اب ہمیں بھی یہ پتہ ہے، ہم ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ صبر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ صبر کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں؟ جو پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ پہلے اپنے واہ ویلا مچا دیا، پہلے چیخ لیا، دوسرے سے لڑ بھی لیا، کچھ اب سمجھ آئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے چلو اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے، جس میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، جس میں اللہ پہ توکل کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ صبر بن جاتا ہے جو پھر ڈھل جاتا ہے اس چیز میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں بھیج دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا تو دیکھنے والا کہتے ہیں
फॉर एग्जांपल दे नो कि ये इस मुश्किल से गुजर रही है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें मतलब परेशानी नहीं है? तो दूसरा बंदा क्या जवाब देता है? नहीं नहीं, परेशानी है, लेकिन इधर सुकून है, इधर चैन है, इधर कोई नहीं है, इधर बस एक अजीब सी खुशी भी है, गम तो अपनी जगह है कि मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे साथ है इस वक्त, क्योंकि जिसके पास गम आ जाता है ना, उसके पास तो अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे ही आ जाते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है। तो हर चीज़ को फिर वो उसी एंगल से देखते हैं। अब देखिए आप में से जिसके घर में, क्योंकि सूरह यूसुफ है ना, तो गम से निकलने को दिल नहीं चाह रहा कि मतलब गम में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। अब सोचिए बाज लोग हैं, मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आ रही है कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों अल्लाह अकबर बीमार हैं वो बच्चे, तो इतनी साबिर है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ये कहती हूँ कि देखें रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जब हम किसी बीमार की तमादारी के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे साथ जाते हैं जो सुबह से रात तक मगफरत की दुआएं करते हैं। तो अगर घर में कोई बीमार है, छोटा है, बड़ा है, माँ-बाप बुज़ुर्ग हैं या सास-ससुर है या कोई भी, आप सोचें कि उस घर में फरिश्ते कैसे नाज़िल होते हैं। उस घर में फरिश्ते होते हैं। आप जब उनके साथ एक मुस्कुरा के भी बात करते हैं तो आप दर्जात देखें कितने बुलंद होते हैं। हमें कहीं इधर-उधर नेकियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे घरों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमतों के दरवाज़े खोले होते हैं। तो कोई भी मुश्किल को मुश्किल ना समझे। अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जानी है, कितनी को रह गई है बेकार फ़ज़ूल की। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन क्या मतलब ख़त्म तो होनी है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक़्त है। उस वक़्त को मैं कैश करूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब जाऊँ ना, वो जो दिन इतना बड़ा होगा उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अपने अर्श के साए तले रखेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे नूर के मेंबरों पे जगह देंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह देंगे। क्योंकि हर मुश्किल में मुश्किल तो आनी है। इम्तिहान में बैठे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुश्किल ना आए? हर तरह का क्वेश्चन आना है। सुबह शुरू होते हैं जब बिस्तर से उठते हैं अल्लाह अकबर की आवाज़ सुन के, और रात तक पेपर देते-देते आँख लग जाती है। और उसमें अगर बंदा अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह से बात करे। किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, थोड़ी देर के लिए ऐसी बात करूँगी, तो मैं उसको ऐसे समझाने के लिए कह रही थी कि अल्लाह से बात करो। जब अल्लाह से जब बात करते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक उसकी दोस्त हूँ जिसको अभी इतना नहीं पता, उसकी बात सुनूंगी फिर उसकी बात कहीं और कर दूंगी। औरतें जो होती है ना, सभी औरतें, आप भी औरत मैं भी औरत हूँ, हमारे घर जो होते हैं ना, वो जैसे मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रख के नहीं रख संभाला होता, उस तरह से रखा होता है। फिर जब शादियां होती हैं, दूसरे घर इन्वॉल्व होते हैं, घरों की बातें भी बाहर चली जाती हैं, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को वो मतलब वो हैंडल नहीं करनी आती बेसिकली सिचुएशन। फिर सैडनेस हो जाती है। फिर कभी हम घर की बात कोई ऐसी बता देंगे किसी को, वो दूसरों को बता देगी तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करें ना, तो वो तो बात किसी को नहीं पता चल सकती है। हमें तसल्ली नहीं होती कई दफ़ा। हमें ये लगता है कि हाय मैं तो फट जाऊँगी अगर मैंने किसी से बात नहीं की। ये भी कमबख्त शैतान ही हमें हमारे दिलों में डालता है कि तुम फट जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा, बता दो ताकि तुम्हारी इश्तिहार लग जाए, सबको पता चल जाए हाय हाय बेचारी के साथ ही हो गया। ये बेचारी का लफ्ज़ तो हम इतने आराम से चिपका देते हैं ना दूसरे के साथ, दिल को ठंड सी पड़ जाती है कि चलो जी ये भी बेचारी हो गई, है ना? अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे ना मेरा दिल नहीं ऑनेस्टली चाह रहा कि मैं आगे निकलूं। इतनी इसमें डेप्थ है इन आयात में और इस टॉपिक में कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बस कबूल कर ले और हमें इसकी समझ आ जाए। अल्लाह हमारे नी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहू व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबा वाली बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे पाक कर दे कि अल्लाह सुब्हाना ताला को हम क़यामत के दिन पसंद आ जाए। बस आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वल्लाहुल मस्तानु, कि बेशक अल्लाह ही है जिससे, वो कौन कह रहे हैं? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना कि अल्लाह ही है जिनसे मदद तलब की जाती है, अला मा तसिफून, जो तुम बयान कर रहे हो। तो ये तो अक्ल की बात मैं कही थी कि देखें अल्लाह से गिला, अल्लाह से बात, अल्लाह से सारी मोहब्बतें करो, अल्लाह से गिले करो। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह जब पूरा ही उसने करना है,
इंसान तो वसीला बनाया हुआ है, कोई करे ना करे हमें क्या पता चलता है उसके दिल में क्या है। अब देखें ना, दवाई है, अगर मैं भी सारे एक ही तरह की दवाई खा रहे हैं तो किसी को आराम आ जाता है, किसी को नहीं आता। शिफा देने वाली तो अल्लाह की जात है। जब करना ही उसने है तो फिर पहले इधर उधर घूमने से, ऑफ कोर्स दवाई जरूर खानी है, डॉक्टर के पास जाना है। मैं जिस एंगल से आपको बता रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह आपको आ रही होगी समझ। तो अल्लाह से बात करनी है, या पाक परवरदिगार मैं जो दवाई खा रही हूँ उसमें शिफा डाल दे, या पाक परवरदिगार मेरा ये मसला हो गया आप सॉल्व कर दे, मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे आप सॉल्व कर दे। अल्लाह का वादा है, इल्का वही करेगा, मेरे भी करेगा, जिसने काम करना उसके भी इल्का करवा के घर के अंदर ले आएगा इंशाल्लाह। तवक्कल होना चाहिए बस। अब आगे देखिए आयत नंबर 19 में, वजाअत सय्यारतुन, तो आया एक काफला। अब वो फेंक आए थे, अब वो फेंक के इसलिए आए थे कि कोई आएगा उठा के ले जाएगा। तो अब एक काफला आता है जो कि कहते सीरिया से मिस्र की तरफ जा रहा था। क्या टाइम है? 42 हुए अभी है टाइम। फअरसलू, तो उन्होंने भेजा, वारिदहुम, अपने पानी लाने वाले को, फअदला दलवा, तो उसने डाला अपना डोल। क़ाला, कहा, या बुशरा, वाह खुशखबरी, हाजा गुलाम, कि ये तो एक लड़का है। अब वहां पे क्या हुआ था कि वो एक काफला रुकता है, वो अपने पानी लाने वाले को, काफले यूजुअली ना उस जमाने में वहीं रुकते थे जहां पे पानी होता था। तो बीबी हाजरा का वाकया याद है ना, अबे जमजम के पास कैसे वो आके रुके थे, तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम पानी लोगे, तो उसकी वजह से वो फिर पैसे देते थे और वो सारा जो भी उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसी तरह से काफले वहां पे रुकते थे जहां पे वो पानी देखते थे। अब उन्होंने यहाँ पे देखा पानी, तो वो वहां पे रुका, और वो बंदा जब पानी लेने के लिए गया तो उसने डोल डाला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम साथ निकल आए बाहर। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये तो एक लड़का निकल आया। और वो क्यों खुश हुए थे कि कहा कि ये गुलाम है, वह असर रूह बेदुआ, कि उन्होंने छुपा लिया इसको सरमाया समझ के। क्योंकि उस जमाने में क्या, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही पहली आई थी, इस्लाम से पहले जो इंसान थे वो बिकते थे, वो सरमाया होते थे। गाय भैंस नहीं बिकते हैं, इस तरह से गुलाम बिकते थे। और बाज दफा अल्लाह अकबर, लोग किसी बच्चों को उठा के जैसे बेच देते हैं, वो ही करते थे। कि आज भी तो देखे ना क्या होता है, अल्लाह अकबर, हम वापस उसी दौर में है। तो उन्होंने क्या समझा कि ये तो पैसे मिलेंगे, इसको बेचेंगे, तो वो समझ के उन्होंने छुपा लिया उसको। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किस दौर की, आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी जब मैं अमेरिका आई थी नई नई, तो मेट चाहिए थी, तो मुझे किसी ने बताया जो पहले से यहाँ थी, वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्होंने बताया कि फला जगह पे ना मेड, तुम जाओगी तो वहां पे मैक्सिकन ही औरत है, तो वो मेड देती हैं, तो तुम वहां पे चली जाना, तो वो मतलब मेड ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी मुश्किल हो रही थी, मेड मिल नहीं रही थी। ये मैक्सिको से यूजुअली लोग आती हैं ये औरतें। अच्छा, जब मैं वहां पे गई अपनी दूसरी दोस्त के साथ, तो आई वाज शॉक टू सी कि वो जो औरत थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक वो पता चला था कि यहाँ की पुलिस को जैसे पता चला, तो वो फिर छुप गए थे, खत्म हो गया वो मामला या जो भी है। तो वो बैठी हुई, तो एक उनका बड़ा सा कमरा था, और उसके अंदर ना इतनी औरतें, अब पता है जैसे गांव में नहीं होता कि कपड़े के अंदर थोड़ी सी चीजें डाल के तो बंद करके रखा होता, किसी ने वो रखा हुआ, किसी ने छोटा सा गंदा सा बैग पैक था, उसके अंदर अपनी चीजें, मतलब इतनी इतनी सी चीजें रखी हुई, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पूरी तैयार हुई, और कुछ बड़ी भी उम्र की थी लेकिन ज्यादातर छोटी थी। और आप बिलीव करें, पूरी, मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 के करीब वो लोग समझे कि वो बैठी हुई हैं। अब लोग जो आ रहे हैं उनमें आदमी भी थे, और यहाँ पे तो वो जैसे होता है ना कि किसी की तलाक हो गई, तो अब बच्चे आदमी के पास हैं, तो वो आदमी मेड देखने आया हुआ था कि जो बच्चों को रख सके, गुमान अच्छा करना चाहिए, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ पता है क्या हो रही थी, कि वहां पे खड़े होकर ना आप पहले देखो सारों को, और फिर आप पॉइंट करते हो कि अच्छा वो मेड चाहिए मुझे, तो वो फिर उसको कहती थी कम हियर जैसे कहते हैं, तो वो आ जाती थी, तो उसको फिर उसे दो बात करके, वो मेरे ख्याल $100 उस वक्त लेती थी पहली पे में से उनके, तो वो फिर उस आदमी के साथ भेज देती थी कि ये मेड के काम के लिए। वहां पे वो आती भी वही थी जो मैक्सिको से आई होती थी। इसी तरह से वो जो बंदा आए, वो सारी जैसे सामान नहीं खरीद रहे होते भेड़ बकरियों की तरह, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा वो वाली बुला दो, उससे इंटरव्यू करा दो, उससे ये करा दो, अल्लाह अकबर। तो
किसी ना किसी सूरत में आज भी होता है। हम पढ़ते हैं ना न्यूज़ में कि आज भी औरतों को सप्लाई किया जा रहा है, तो खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए ये ना करो, बच्चे गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वही बात देखें यहाँ पे जो वो ये कह रहे हैं कि वो इतने खुश हो गए कि ये तो हमें मतलब माल मिल गया अगर हम जाके इसको बेच देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो वो अमल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और तसल्ली वाली बात देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, बाप को कुछ नहीं पता, इतना लाडला बच्चा किस हालत में, उसको इतना तो समझ आ रही थी ना कि उसको कोई पकड़ के वो अच्छी तरह से तो नहीं लेके बैठे हुए थे, उसको छुपा रहे थे ताकि उनको ये पता था कि ये गुलाम नहीं है, मतलब ये ना हो कि ये बच्चा गिरा हुआ है, इसका कोई मालिक आ जाए लेने के लिए तो फिर हमारा तो माल चला जाएगा। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं देख रहा था जो ये कर रहे थे। आज अगर हम गम में कितने गहरे कुएं में गम के फंसे ना, मुश्किलों में फंसे, गलतियों में फंसे, गुनाहों में फंसे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं ना वो जाहिलियत में होते हैं, बंदा उस वक़्त उसको समझ ही नहीं आती है, ऐसा उसके साथ चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि बचपन में भी उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होती। फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं फिर उसके अंदर चली जाऊँगी। तो यहाँ पे हम इसी बात को रखते हैं कि देखिए ये इतना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वशरौहु बिथमनिन समनिन बख्सिन, कि उन्होंने बेच डाला कीमत पर कम, किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कम कीमत पर बेच डाला। दराहिमा मादूदा, दिरमों में गिने चुने, वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, कि वो थे बेरगबत। क्यों बेरगबत थे? इसलिए कि उनको ये डर था कि, क्योंकि आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल घरों में अल्लाह ना करे जैसे चोरियां होती हैं, तो कोई चोर जब सामान ले जाते हैं तो वो किस कीमत पे बेचते हैं? उनको ये होता है कि बस किसी को पता ना चल जाए, जल्दी से जो भी कीमत मिल रही है उनके लिए, तो वो सामान उस तरह का नहीं होता जैसे इंसान जिनके घर होता है उनके लिए होता है। इसी तरह से क्योंकि ये चोरी करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो इन्होंने उनको कम कीमत पे बेच दिया। इसके लिए डिफरेंट तफसीर भी आती हैं। बाद में ये था कि भाई थे ना जो वो आके देख रहे थे, अगले दिन भी देख रहे थे कि ये ना हो कि मतलब किसी को पता चल जाए, तो उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने उसको निकाला है, तो उन्होंने जाके उसको कहा कि इसकी कीमत हमें दो। तो ये जो लफ्ज़ है ना, वो कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, के वो बेरगबत थे, तो बेरगबत भाई बेरगबत थे, तो उन्होंने उसको 20 दिरहम में बेच दिया। तो बाज़ दफ़ा ये भी आता है। तो अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ाल लज़ी, और कहा उस शख्स ने जिसने इश्तराहू, खरीदा इसको। अब किसने खरीदा था? अब ये मिस्र के बाजार में बिके हैं। अब वहाँ पे अजीज़ मिस्र ने जो इनको खरीदा था, अब उनकी स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। 49 है अभी थोड़ा सा टाइम, तो इनकी स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है कि अब ये बिक के कहाँ पे गए हैं, इनको किसने खरीदा? अजीज़ मिस्र ने खरीदा है। तो उन्होंने क्या कहा? वक़ालल्लज़िश्तराहु मिन मिस्र, के मिस्र में जिसने खरीदा था, लिमराती ही, अपनी बीवी को, अक्रिमी, के बाइज्जत कर, मथवाहु, ठिकाना इसका, आसा मुमकिन है अन यनफ़उना, कि ये हमें फ़ायदा दे, औ नत्तख़िज़हु, या हम बना ले इसे वालदा, अपना बेटा। अब अजीज़ मिस्र ने इनको जब लेके गए हैं तो अपनी बीवी को कहा, अब अच्छा इसका नाम ना ज़ुलेखा जो है ये कुरान में नहीं है, और ना ही ये तौरा में आता है। ये कहते हैं तलमूद में इसका ये नाम आता है, लेकिन ये जो एक स्टोरी आती है ना कि बाद में इन्होंने शादी कर ली थी ज़ुलेखा के साथ आके, तो ना ये कुरान में है, ना तौरा में, ना तलमूद में, ये खुद ही से बस एक स्टोरी बनी हुई है। ये अक्सर लोग फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं, अच्छा बाद में तो फिर क्या ज़ुलेखा ने शादी कर ली थी? तो ऐसा कोई भी वाक़या नहीं है। तो कहते हैं वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह से जगह दी हमने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तरफ इसकी निस्बत कर रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको जगह दी यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिल अर्दी, ज़मीन में, वलिनुअल्लिमुहु, ताकि हम सिखाएं इसे, मिन तावीलिल अहादीस, के बातों की मामला फहमी, हिकमत सिखाएं और ख्वाबों का
की ताबीर सिखाए। अब देखिए इसमें हमें ख्वाबों की ताबीर भी हम देखेंगे कि फिर बार-बार हम कि किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको क्यों ये इल्म दिया था, क्योंकि इसी के थ्रू आगे जाके इन्होंने जेल से निकलना था और इसी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको वो मुकाम देना था जो बादशाहत का इनको मिलना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये ताकि हम सिखाएं इसे तावीलुल हदीस के मामला फहमी और हिकमत, या फिर आप इसको उससे भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट टाइम भी बता दिया था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब है अपने काम में, अल्लाह जो चाहता है करता है। यहाँ पे आके मामला तकदीर का आ गया कि अल्लाह उनकी तकदीर में ये लिखा हुआ था, उनका ये मामला होना ही होना था। अब यहाँ पे वलाकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं इस बात को। तकदीर का इल्म हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो क्या बताया था कि उनको भी नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल जितना बताया ना उतना ही हमें भी पता है। यहाँ पे आप अब ये वाली बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी गौर से समझ लें। एक दफ़ा हमें ये भी समझ आ जाए कि तकदीर क्या है, क्योंकि अब देखें ना कि हम कह रहे हैं कि जब अक्सर ये बात करते हैं ना कि जब तकदीर में लिखा था तो फिर हम क्या करें, ये तो होना ही था तो फिर हम क्या करें। देखिए तकदीर जो है ना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। ठीक है, ये बात तो आप अपने कहते हैं ना दिल पे लिख ले कि इस बात से फिर आपको अगली सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, हुक्म नहीं है। तकदीर क्या थी, हमने ये भी पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले, कहते हैं इंसान क्या फरिश्ते क्या, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को बनाया। ये आज हमारे हाथ में, ये इतनी बड़ी चीज़ है जो हमारे हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को पैदा किया और उसको कहा कि लिख। उसने कहा क्या लिखूं, कहा कि हर चीज़ की तकदीर जो क़यामत तक चीज़ होनी है ना वो लिख दे। अब ये वाली तकदीर जो है ना ये नहीं बदलती, जो लिख गया लिख दिया गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कलम तो उसके बाद स्याही सूख गई, कलम उठा लिए गए, अच्छा जी लिख दिया गया। और हम शुरू से ये सुनते हैं तो अच्छा जब लिख दिया गया है तो फिर हम क्या करें। अच्छा अभी आपने रुकना है। दूसरी तकदीर क्या होती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात हैं, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त के अंदर तो नहीं है, वक्त तो दुनिया का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी एक दफ़ा दी थी कि जैसे एक फिल्म बनाने वाला अपनी जब पूरी फिल्म बना लेता है तो उसको पता है कि ये पूरा स्टेज से गुजर के आखिर में क्या होगा। हमें नहीं पता होता, अगर हम फिल्म देखने बैठे हैं तो हम तो वो सीन बाय सीन ही देख रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जानते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी बदलने वाला नहीं है। तीसरी चीज क्या है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान पैदा होता है, जब वो अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो उस वक़्त लिख दिया जाता है उसका रिस्क और उसकी मौत और उसकी ज़िंदगी, कि उसने कब इस दुनिया में जाना है और कब उसने कब्र में चले जाना है। तो लिख दिया, हमें सबको पता है। और रिस्क भी लिख दिया जाता है कि इसका रिस्क क्या होगा। रिस्क में सारी नेमतें आ जाती हैं वैसे। अच्छा ये पॉइंट पे आप देखें, ये बदला जा सकता है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जब हम नेकियां करते हैं तो हमारी उम्र में इजाफा करती हैं, वो सारी हदीस है। अच्छा ये वाली चीज़ ना जब लोहे महफूज में जो लिखा गया था ना, कलम ने लिखा था, उस वक़्त कलम ने ये भी लिखा था कि ये नेकियां करेगा, ये चीज़ करेगी और इसके बाद इसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था। अच्छा ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा अब तो ये लिखा गया। अब चौथी चीज़ में आप आ जाएं कि जो हम लैलतुल कदर, एक साल की कदर जो है कि हर साल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रात को, हमारी फैसले जो उतरते हैं तो वो रात इसीलिए इतनी मुबारक रात होती है, उसमें हम इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं कि वो जो पूरे साल में चीज़ें होनी है ना, हमारी दुआ कबूल हो जाती है। मे बी तो वो मुश्किलें नहीं आती हैं, वो परेशानियां नहीं आएंगी या कुछ होना है वो नहीं होगा, तो वो उस लैलतुल कदर में एक साल की कदर जो उतरती है वो बदल सकती है हमारी नेकियों से, हमारे सदकात से या हमारी इन चीज़ों से। ठीक है, ये हो गया, बात आपको क्लियर होगी।
پھر ایک قدر ہے، کیونکہ ہم جب قدر کی بات کرتے ہیں نا، تقدیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہی قدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لکھی گئی تھی، تو پھر اب ہم کر کے کیا کریں گے، تو ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو جو لکھا وہ تو ہو کے رہنا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لاسٹ بات میں کر رہی ہوں کہ ایوری سنگل ڈے صبح کے ٹائم فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں نا، صبح پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، رات کو پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، صدقہ دیتے ہو صبح محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب جو پریشانیاں آنی تھی ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہٹا دو اس کے راستے سے، صدقہ دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہٹا دو یہ اس کے راستے سے۔ اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ یوزلی میں مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ ایوری سنگل ڈے فجر کی نماز کے بعد بے شک 1 روپے کا صدقہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں۔ 1 روپے کا بے شک صدقہ دے، ایوری سنگل ڈے صدقہ دیں، اپنے بچوں کا، اپنے خامند کا، اپنے ماں باپ کا، اگر زندہ ہے تو تب دیں، نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے ایوری ڈے یہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن میں بھی خیر رکھیں گے، اس دن میں بھی خیر رکھیں گے۔ تو یہ والی چیز بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایک سکون ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کے اس چھوٹی میں میری خلاصی ہو گئی ہے، اینڈ پھر اس کے بعد جو ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر ہم وہ بھی تکلیف کوئی نہیں دیتی۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سورہ یوسف میں اتنے پیارے سبق آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی نا، تو ہماری زندگیاں آسان ترین زندگیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جن کی زندگی میں قرآن کھلا ہے وہ تو انشاءاللہ جانے گا نا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ مانگا کریں یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو اب آگے پڑھیں، کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 2 منٹ رہ گئے، آئی تھنک اگلی آیت ہاں ہو جائے گی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ، تو دیا ہم نے اس کو حکمًا وعلما، ہم نے اس کو قوت فیصلہ، وزڈم عطا کی، وعلما، اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے۔ بے شک آپ کا رب کہ بہترین، خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے، لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے۔ ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔